بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے کمرے میں خوف زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھی بے چینی کے عالم میں دائیں بائیں پہلو بدل رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ اماں نے دروازہ کھولا۔ ابا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اماں نے کہا، کیا ہوا مہرالنساء کے ابا؟ ابا خاموشی سے سر جھکائے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ تو بولے، پنچایت میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ ابا نے سر پر پہنی ہوئی پگڑی اتار کر گود میں رکھی اور رونے لگے۔ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، ہائے ہائے مہرالنساء کے ابا، خدا کے لیے وہ نہ کہنا جو یہ کان سن نہیں سکتے۔ ابا نے روتے ہوئے کہا، بھاگ بھری وہی فیصلہ ہوا ہے جو انہوں نے پہلے بتایا تھا۔ اس فیصلے سے وہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ پنچایت سے وڈیرے نے ہمارے بیٹے کو بھی حویلی میں رکھ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جس دن ہماری بیٹی کی رخصتی ہوگی اسی دن ہمارے بیٹے کو گھر بھیج دے گا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ اماں نے کہا، ہائے میرے مالک، مہرالنساء کے ابا، میری بچی کا کیا قصور ہے؟ ہمارے بیٹے سے غلطی ہو گئی۔ ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہے ہیں، پیسے ادا کر رہے ہیں، پھر ان کی نظر ہماری بیٹی پر کیوں ہے؟ ابا بولے، بھاگ بھری، او بھاگ بھری، کہتا تھا تجھے کہ اپنے بیٹے کی اتنی سائیڈ مت لیا کر، مت اسے چودھری کے بیٹے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیا کر۔ تیرے بیٹے نے چودھری کے بیٹے کو نہر میں دھکا دیا ہے اور اس کا خمیازہ اب ہماری بیٹی بھگتے گی۔ اماں نے کہا، نہ کرو مہرالنساء کے ابا، نہ کرو، وہ حادثاتی نہر میں گرا ہے، میرے بچے نے اسے دھکا نہیں دیا۔ ابا نے کہا، مگر وہ تو نہیں مان رہے نا، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ہمارے بیٹے نے جان بوجھ کر نہر میں دھکا دیا ہے۔ ہم ٹھہرے غریب لوگ، ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے سے بڑے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں، ان کے ساتھ دوستیاں بنائیں۔ تیرے بیٹے نے جان بوجھ کر نہ بھی کیا ہو تو اب میں کیا کروں؟ بیٹی کو بچاؤں یا بیٹے کو؟ اماں نے روتے ہوئے کہا، کچھ کرو مہرالنساء کے ابا، کچھ کرو۔ وہ لوگ شادی کے بعد میری بیٹی کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے، آخر وہ ہماری بیٹی لینے کے لیے زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ ابا خاموش تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ ابا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مجبور اور بے بس تھے۔ میں سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اتنے میں اماں کمرے میں آئیں، مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے کہا، اماں مجھے بچا لو، اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اماں مجھے گلے سے لگائے رو رہی تھی۔ میرے بڑے بھائی عدنان کی دوستی چودھری کے بیٹے سے تھی۔ ابا نے بھائی کو کئی دفعہ منع کیا کہ چودھری کے بیٹے کے ساتھ دوستی نہ رکھے، مگر بھائی باز نہ آئے۔ دوستی کی وجہ یہ تھی کہ بھائی شطرنج کھیلنے میں ماہر تھے اور چودھری کا بیٹا بھائی کے ساتھ شطرنج کھیلتا اور سیکھتا تھا۔ ایک دن بھائی اور چودھری کا بیٹا نہر کنارے شطرنج کھیل رہے تھے۔ چودھری کے بیٹے کے 2 اور دوست بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک دوست کو بھائی کے ساتھ بہت حسد تھی۔ شطرنج کھیلتے ہوئے ہارنے پر چودھری کے بیٹے کا وہ دوست بھائی سے الجھ گیا۔ بات بڑھی، چودھری کا بیٹا اسے روکنے لگا۔ بھائی کے مطابق اسی دوران موقع ملتے ہی اس نے چودھری کے بیٹے کو دھکا دیا۔ وہ سنبھل نہ سکا اور نہر میں جا گرا۔ اس کے بعد اس نے بھائی پر الزام لگا دیا کہ بھائی نے اسے نہر میں دھکا دیا ہے۔ اس کا ایک اور ساتھی، وہ بھی بھائی کے خلاف گواہ بن گیا۔ بات پنچایت میں گئی۔ چودھری کے بیٹے بھائی کو پکڑ کر لے گئے۔ وہ بھائی کو مار بھی سکتے تھے، لیکن اسی دوران گاؤں کے سب سے طاقتور وڈیرے نے اس معاملے میں مداخلت کی۔ اس نے تحمل سے بھائی اور چودھری کے دوستوں سے بات کی کہ شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں بھائی کا قصور نہیں ہے، مگر چودھری ہر حال میں بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا۔ لہٰذا وڈیرے نے اس کا حل یہ نکالا کہ جو چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا اور اس دشمنی کو رشتہ داری میں بدل دیا جائے۔ پہلے تو چودھری نے اس بات پر بہت واویلا کیا، لیکن پھر نہ جانے اسے کیا سوجھا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا۔ لیکن اتنے بڑے معاملے میں چودھری کا اچانک چپ ہو جانا کسی بڑے طوفان کا اشارہ تھا۔ کوئی اپنی جوان اولاد کو کیسے بھول سکتا تھا؟ جو بھی ہو رہا تھا یقیناً اس کا بوجھ اب مجھے اٹھانا تھا۔ مجھے یہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ابا 3 دن تک وڈیرے کے پاس آتے جاتے رہے، کوئی اور راستہ نکالنے کی کوشش کرتے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ چودھری اس بات پر قائم تھا۔ وڈیرے نے ابا سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں خود مہرالنساء کی ذمہ داری لوں گا، مگر کوئی کسی کی عمر بھر تو ذمہ داری نہیں لے سکتا نا۔ 1 ہفتے کے بعد میرے نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ اس شادی کو رکوانے کے لیے
किसी की क्या मिन्नत करती, घर में पहले ही मातमी माहौल बना हुआ था। वो वक्त भी आन पहुंचा। 2 दिन के बाद मेरा निकाह था। वडेरे ने भाई को घर भेज दिया। अम्मा भाई पर सदके वारी जा रही थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई ही थे। अम्मा अब्बा के लिए तो हम दोनों ही कीमती थे, लेकिन मैं अपने आने वाले मुस्तकबिल से खौफज़दा थी। अब्बा मेरी शादी किसी गरीब गुरबा में कर देते, मैं फाक़े कर लेती, मगर यहाँ शादी ना करते। मेरी उम्र फ़कत 20 साल थी। मेरे सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी थी। 2 दिन बाद मेरा निकाह था। आधी रात का वक्त था। मैं कमरे में अपनी चारपाई पर लेटी आंसू बहा रही थी। मेरे साथ वाली चारपाई पर अम्मा गहरी नींद सो रही थी। मैं खामोशी से उठी और सहन में चली आई। मैं सिसकियाँ ले रही थी। दूसरे कमरे में अब्बा और बड़े भाई सो रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने अब्बा और भाई को हसरत भरी निगाह से देखा। वापस अपने कमरे में आई। अलमारी में रखे प्लास्टिक के डब्बे में से कुछ पैसे निकाले। यहाँ अम्मी बचत के पैसे रखा करती थी। मैंने अपना एक जोड़ा उठाया, चादर ओढ़ा। न जाने ठीक था या नहीं, लेकिन दिमाग ने एक फ़ैसला किया और दिल ने फ़ौरन उसकी तायद कर दी। मैंने आखिरी निगाह अम्मा पर डाली और आहिस्ता से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर वाले दरवाजे पर पहुंची तो दिल बोझल था और आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी। न जाने इसका अंजाम क्या हो, मगर फिर भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला, बिस्मिल्लाह पढ़ी और घर से बाहर निकल आई। आधी रात का वक्त था। गहरी खामोशी थी। मैंने चादर में मुंह छुपाया और चल पड़ी। जाऊंगी कहाँ? दिल ने ये सवाल नहीं किया था। मुझे तो बस इस शादी के आगे अपनी मौत नज़र आ रही थी। आधी रात के वक्त मैं तेज़ तेज़ कदम उठाए अनजान सिमत में चली जा रही थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही मैं अपने घर की गली मुड़ने लगी, मुझे 2 मर्द नज़र आए। उन्हें देखकर मैं फ़ौरन पीछे हट गई। ये कौन थे और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? एक आदमी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मेरी बात कान खोलकर सुन, हमें टारगेट मुकम्मल करके जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। दूसरा बोला, यार सब्र भी तो कर, बच्चियाँ अगवा करना क्या खाला जी का अवेड़ा है? ये सुनते ही खौफ से मैं लरस गई। मैंने तेज़ तेज़ कदम उठाया और साथ वाली गली में घुस गई। उस गली में कोई नहीं था। मैंने बाकायदा भागना शुरू कर दिया। मुझे तो अब ये डर लगने लगा था कि वो लोग कहीं मुझे ही न अगवा कर लें। घर की 4 दीवारी के अंदर मैं ख़ुद को महफूज तसव्वुर नहीं कर रही थी। 4 दीवारी से बाहर की दुनिया कितनी खौफनाक थी, इसका अभी मुझे इल्म ही कहाँ हुआ था। मैं गली से निकली और बड़ी सड़क पर आ गई। मुझ पर शदीद खौफ तारी था कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती सड़क पर चलने लगी। अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। करीब ही एक दुकान के पास रेहड़ी खड़ी थी। मैं उस रेहड़ी के पीछे छुपकर बैठ गई। सड़क पर तकरीबन अंधेरा ही था, बस चांद की मध्यम रोशनी में रास्ता सुझाई दे रहा था। 2 आदमी उसी तरफ चले आ रहे थे। मैं रेहड़ी के पीछे छुपी खौफ से उन्हें देख रही थी। आखिर वो बातें करते नज़रों से ओझल हो गए। मैंने शुक्र पढ़ा कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने उछल कर पीछे देखा। मेरे पीछे नहायत गंदे हुलिये में एक मर्द खड़ा था। मेरी बस चीख निकलते निकलते रह गई। वो नशे में झूम रहा था। बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ देती जा। मैं जल्दी जल्दी खड़ी हुई और वहाँ से भाग पड़ी। वो आदमी मेरे पीछे ये कहते हुए भागा, रुक तो सही, कि उसी लम्हे उसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। वो नशेई था। उसका हुलिया बता रहा था मुझे जितना जल्द हो अपने इलाके से निकलना चाहिए। अब घर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि आधी रात के वक्त घर से बाहर कदम रखना बज़ाते खुद बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी हमारे मुआशरे में माफ़ी नहीं थी। सुनसान सड़क पर काफ़ी देर चलती रही। न जाने कहाँ जा रही थी। मैं अनजान सिमत में सारी रात चलती रही। आखिर मुझे अजान की आवाज़ आई, यानी फजर का वक्त हो चला था। बस थोड़ी देर बाद ही उजाला होने वाला था। अम्मा और अब्बा इस वक्त फजर की नमाज के लिए उठते थे। वो भी उठ चुके होंगे। मुझे घर में ना देखकर उन पर क्या बीतेगी। मैं चल चल कर बिल्कुल थक चुकी थी। सड़क के किनारे मुझे एक टूटा फूटा छोटा सा घर नज़र आया। मेरे पाँव थकन से शल हो चुके थे। इस घर का दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। मैं आराम करने की गर्ज से घर के अंदर चली गई। अंदर एक टूटा फूटा कमरा था। मैं कमरे के अंदर गई और ज़मीन पर लेट गई। मुझे आराम की ज़रूरत थी। अब मुझसे एक कदम चलना भी मुमकिन नहीं था। मैं ज़मीन पर लेटी और सो गई। तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरी आँख खुली। मैंने कमरे से बाहर झांका। दिन चढ़ गया था।
यकीनन मैं काफ़ी देर सोती रही थी। मैंने अपने कपड़ों का जोड़ा उठाया, खंडरनुमा घर से निकली और चल पड़ी। मेरे लिए बेहतर यही था कि मैं किसी गाड़ी पर बैठूं और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊं। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। अम्मा, अब्बा और भाई कमरे में बैठे हुए थे। अम्मा चारपाई से उठ खड़ी हुई और बोली, हाय अल्लाह, मेहरुनिसा के अब्बा, कौन आ गया? अब्बा ने कहा, मैं देखता हूँ। दरवाजे पर दोबारा पहले से ज़्यादा ज़ोर से दस्तक हुई। अब्बा ने दरवाज़ा खोला। चौधरी बेधड़क अपने 2 आदमियों के साथ घर में घुस आया और बोला, कहाँ है मेहरुनिसा? बता मुझे, कहाँ है तेरी बेटी? चौधरी ने अब्बा को गिरेबान से पकड़ लिया। अम्मा और भाई भी कमरे से बाहर निकल आए। भाई ने कहा, चौधरी साहब, खुदा के लिए अब्बा को छोड़ दें। चौधरी ने अब्बा को छोड़ा और भाई को एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करते हुए बोला, सब तेरी वजह से हो रहा है। भाई ने कहा, जितना मारना है मार लें, यूं करें मुझे जान से ही मार दें, लेकिन कल को अगर आपको ये पता चला कि मैंने नहीं किसी और ने आपके बेटे को मारा है, उस वक्त आप क्या करेंगे? चौधरी ने कहा, तब की तब देखी जाएगी, मगर अब क्या करना है ये इस वक्त ज़रूरी है। तुम लोगों ने समझा कि मुझे पता नहीं चलेगा। जानते हो, सुबह सुबह तेरी बहन को सड़क पर जाते हुए मेरे मुंशी ने देखा है। उसके बाद चौधरी अब्बा से मुखातिब हुआ, मेरी एक बात याद रखना, मैं अपने बेटे की मौत का बदला तो लूँगा ही, बल्कि अब तेरी बेटी ने मेरी गैरत पर जो ज़रब लगाई है उसका बदला भी लूँगा। उसके बाद वो अपने साथियों से बोला, फ़ौरन मुंशी के बताए हुए एड्रेस पर पहुँचो और इस लड़की को बालों से घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। ये कहकर चौधरी अपने साथियों समेत घर से निकल गया। अम्मा ने कहा, या अल्लाह, अब क्या होगा? अब मेरी बेटी नहीं बचेगी। मेहरुनिसा के अब्बा, खुदा के लिए मेरी बेटी को ढूंढ लाओ इससे पहले कि ये लोग उसे मार दें। मुझे लग रहा था कि मैं चलते चलते कम अज़ कम अपने इलाके से बाहर आ गई हूँ। ये एक मार्केट थी और हमारे गांव में इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। गांव से निकलकर एक कस्बा था जो हमारे गांव से बड़ा था। मुझे ये मार्केट उसी कस्बे की लग रही थी। मुझे शक हुआ जैसे कोई मेरे पीछे हो, ये देखने के लिए कि ये मेरा वहम है या कोई मेरे पीछे है। मैं एक गली में मुड़ी। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टोर था। मैं तेज़ी से स्टोर के अंदर घुस गई। बड़े बड़े रैक्स थे जिनमें सामान रखा हुआ था। मैं उनके पीछे चली गई, मगर मेरी नज़र दुकान से बाहर ही थी। अचानक एक शख्स गली के अंदर आया। उसे देखकर मेरे औसान खता हो गए। ये तो चौधरी का मुंशी था। इसे कौन नहीं जानता था? सारा गांव ही जानता था। गली में दाखिल होते ही वो ऐसे इधर उधर देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा पीछा कर रहा था। वो आगे की तरफ चल पड़ा। इतने में स्टोर का एक मुलाजिम मेरे पास आया और बोला, क्या चाहिए आपको? मैंने चौंक कर उसे देखा और बोली, हाँ भाई, मुझे बिस्किट चाहिए थे। उसने दूसरे रैक की तरफ इशारा करते हुए कहा, बिस्किट वहाँ पड़े हुए हैं। मैंने 2 अदद बिस्किट के डब्बे खरीदे। दुकान से निकली, वही रिक्शे वाले भी खड़े थे। मैंने रिक्शा किया और बोली, भाई बस स्टैंड पर पहुँचा दो। रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है बाजी। उसने रिक्शा चलाया और मुझे लेकर बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गया। यकीनन अब तक मुंशी ने चौधरी को फ़ोन भी कर दिया होगा। मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी था। ये कस्बा हमारे गांव से बड़ा है, मार्केट भी बड़ी है और बस स्टैंड भी। ये वही कस्बा है जहाँ मैं 2 बार अब्बा के साथ यहाँ ईद के कपड़े ख़रीदने के लिए आ चुकी थी। उसका मतलब था कि कल रात मैं गाँव से निकल आई थी। मैं बस स्टैंड पर पहुँची। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थीं। कई गाड़ियाँ तो निकलने के लिए तैयार थीं, मगर मैंने कहाँ जाना था मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं था। मैं हिम्मत करके एक बस में जा बैठी। कंडक्टर आवाज़ें लगा लगा कर मुसाफिरों को बुला रहा था। ये बस शहर जा रही थी। अब्बा से सुना था शहर बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने शहर जाने का इरादा किया ताकि वहाँ कोई मुझे ढूंढ न सके। एक एक करके मुसाफिर बस में सवार हो रहे थे। बहुत इंतज़ार के बाद गाड़ी चल ही पड़ी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे साथ वाली सीट पर एक नौजवान लड़की बैठी थी। उसके हुलिये से पता चल रहा था कि वो पढ़ी लिखी है। मुझे वक्त का इल्म भी नहीं था। मैंने उससे वक्त पूछा। उसने बताया कि सुबह के 11 बजे हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मैंने दोबारा पूछा, हम कब तक शहर पहुंच जाएंगे? वो बोली, पूरे 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा, ओह अच्छा। वो बोली, पहली बार शहर जा रही हो? मैंने कहा, जी। वो और तो कुछ ना बोली, बस अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी।
मैं अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रही थी, साथ ये भी दुआ कर रही थी कि मुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा ना हो। मगर मेरे लिए सबसे मुश्किल सवाल ये था कि मैं शहर पहुँच तो जाऊँगी, मगर वहाँ मैं किसके पास जाऊँगी, क्या करूँगी। 11 बजने का मतलब ये है कि मैं ठीक 1 बजे शहर पहुँच जाऊँगी। इसके बाद मुझे शाम होने से पहले अपने रहने के लिए कोई जगह तलाश करना होगी। ये कैसे होगा? मैं दिल ही दिल में अल्लाह से गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगी। 2 घंटे बाद शहर आ गया। मैं बस से उतरी और पैदल ही बस स्टैंड से बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं यहाँ तक तो पहुँच गई थी, लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाऊँगी? दिल खून के आंसू रो रहा था। वापस लौटती हूँ तो जो गुनाह मैंने नहीं किए वो भी मेरे हिस्से में डाल दिए जाएंगे। शहर तो बहुत बड़ा था, अनगिनत दुकानें थीं, लोगों का हुजूम, रिक्शा, टैक्सी, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ। मेरा तो दिमाग चकरा गया। मैं अनजान सिमत की तरफ चली जा रही थी। मुझे भूख महसूस हुई। जगह जगह होटल बने हुए थे। मैं भी एक सस्ते से होटल में बैठी दाल रोटी खाई और होटल से निकल आई। कुछ इल्म नहीं था कहाँ जाना है और मैं कहाँ जा रही थी। चलते चलते मैं एक गली से गुजरी। 9-10 साल का बच्चा बदहवासी के आलम में इधर उधर इस तरह देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। इसी लम्हे 14-15 साल का लड़का भागता हुआ आया। उसने दूर से ही 9-10 साल के बच्चे को आवाज़ दी, आसिफ वहीं रुक जा। वो बच्चा रुक गया। बड़ा लड़का उसके करीब आया और बोला, अब एहतशाम को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसिफ ने कहा, क्यों? बड़े लड़के ने कहा, ज़हीर भाई बता रहे हैं उन्होंने आखिरी बार एहतशाम को हवेली में जाते हुए देखा था। उसके बाद दोबारा एहतशाम किसी को नज़र नहीं आया। आसिफ ने कहा, भाई ये तुम क्या कह रहे हो? वो हवेली तो बहुत पुरस्रार है। आज तक कोई बच्चा उस हवेली में जाकर वापस नहीं आया। अब तक 5 बच्चे गुम हो चुके हैं। दोनों बच्चों की गुफ्तगू सुनकर मैं रुक गई। मैंने कहा, क्या हुआ बच्चों, क्या परेशानी है? बड़े लड़के ने कहा, हमारा दोस्त गुम गया है। पिछले 5 घंटों से नहीं मिल रहा। अभी किसी ने बताया है कि उन्होंने हमारे दोस्त को आखिरी बार फुरकान पैलेस में जाते हुए देखा था। फुरकान पैलेस बहुत बड़ी हवेली है जो बरसों से वीरान पड़ी है। इस हवेली में जो भी जाता है गुम हो जाता है। मैंने हैरत से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? छोटा बच्चा आसिफ बोला, लगता है आप यहाँ नई आई हैं, इसीलिए आप हैरान हो रही हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ये नई बात नहीं है। हर कोई इस हवेली की हकीकत जानता है, इसीलिए इस हवेली के अंदर कोई नहीं जाता है। ये कहकर दोनों बच्चे चल पड़े। मैंने कहा, अच्छा रुको। बच्चों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, वैसे वो हवेली कहाँ है? मैं भी उस हवेली को देखना चाहती हूँ। बड़े लड़के ने कहा, आंटी यहाँ से 2 गलियाँ छोड़कर एक खुली जगह आएगी। वहाँ आपको बहुत पुरानी खंडरनुमा हवेली नजर आएगी। जब आप हवेली के करीब जाएंगी तो वहाँ फुरकान पैलेस लिखा होगा, लेकिन गलती से भी इस हवेली के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं। हम अब चलते हैं, हमने घर जाना है और हमने ये अंकल को बताना है। मैंने कहा, ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया, तुम लोग जाओ। दोनों बच्चे चले गए। मैं उस हवेली की तरफ चल पड़ी। मैं बचपन में अम्मा से भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत शौक से सुना करती थी। मेरी अम्मा ने भी प्राइमरी तक तालीम हासिल की हुई थी। वो उर्दू लिखना और पढ़ना जानती हैं। मुझे भी अम्मा ने प्राइमरी तक पढ़ाया था। मैं जब छोटी थी तो अम्मा अब्बा से कहानियाँ मंगवाया करती थी और मुझे कहानियाँ पढ़कर सुनाया करती थी। अब्बा के मुताबिक हमारा गांव बहुत कदीम है। हमारे गांव में भी 2 बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं। हमारे गांव के बुज़ुर्ग अक्सर अपने बच्चों को वो इमारतें दिखाने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जो बातें कर गए थे वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी। हो सकता है कि शायद ये अफसाना हो। मैं बच्चों के बताए हुए पते के मुताबिक हवेली की तरफ चली जा रही थी। मैं हवेली के सामने पहुंची। इतनी बड़ी हवेली देखकर मैं दंग रह गई। यकीनन ये बहुत पुरानी इमारत थी जो कि अब काफ़ी टूट फूट चुकी थी, मगर हवेली के अंदर जाने की मेरी हिम्मत ना हुई। हवेली के ऐन सामने दरख्तों का झुंड था। मैं उनके बीचों बीच बैठ गई। शाम भी होने वाली थी और अभी तो रात भी गुजारना थी। दिल में बार बार एक ये ख्याल भी आ रहा था कि शायद मैंने घर छोड़कर गलती की है। चल चल कर मेरे पाँव शल हो चुके थे। मैं दरख्तों के झुंड में एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई कि बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। मेरी आंख तब खुली जब एक शख्स मुझे हिला हिलाकर जगाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, सुनो, कौन हो तुम? सुनो, कौन हो तुम? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैं आंखें फाड़े अजनबी को देख रही थी। अंधेरा हो चुका था, मतलब मैं काफ़ी देर से सोती रही थी। पैंट शर्ट में मलबूस शख्स ने कहा, बाहर निकलो, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैं दरख्तों के झुंड से बाहर निकल आई। हमसे कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में 2 आदमी बैठे हुए थे। अजनबी ने मुझे कहा,
ٹکر ٹکر اس گاڑی کی طرف کیا دیکھ رہی ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ میں اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں۔ اجنبی بولا۔ اپنی عمر اور قد دیکھو، اس عمر میں بھی کوئی گھر کے راستے بھولتا ہے کیا؟ سچ سچ بتاؤ، کون ہو تم؟ میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دوبارہ بولا، چلو یہ بتاؤ کہاں سے آئی ہو؟ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں چل پڑی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ پڑی۔ وہ آدمی چلایا، رک جاؤ۔ اسی اثنا میں گاڑی میں سے ایک شخص نکلا۔ یہ دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں حویلی کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن مجبوراً حویلی کے ٹوٹے گیٹ سے میں بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر ہو گئی۔ وہی شخص چلایا، سنو، اس حویلی کے اندر مت جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، تینوں آدمی حویلی سے باہر کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن سنسان حویلی کے اندر نہیں آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ وہ مجھے پکڑنے کے لیے ویران حویلی کے اندر بھی آ سکتے تھے، مگر نہیں آئے۔ اس سے مجھے لگنے لگا کہ کیا واقعی جنات کا اس حویلی سے کوئی تعلق ہے؟ لیکن اب رات ہو چکی تھی اور میں رات کھلے آسمان تلے نہیں گزار سکتی تھی۔ جنات سے شاید بچ جاتی، مگر انسانوں کے روپ میں چلتے پھرتے شیطانوں سے مجھے کون بچاتا؟ میں حویلی کے اندر چل پڑی۔ میرے پاس صرف ایک شاپر تھا، جس میں میرا ایک جوڑا اور بسکٹ کے 2 ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ حویلی کے بہت بڑے صحن میں اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ڈھیروں پتے حویلی کے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے حویلی کا دروازہ کھولنے کے لیے اسے ہاتھ لگایا کہ حویلی کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ اب مجھے سچ مچ خوف آ رہا تھا، کیونکہ حویلی کا دروازہ خود بخود کیسے کھل سکتا تھا؟ حویلی اندر سے بہت خوبصورت تھی، لیکن برسوں بند رہنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی یا تو مان پڑ چکی تھی یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ جو لوگ اس حویلی میں رہتے تھے، ان کا زیر استعمال فرنیچر ابھی تک اس حویلی میں رکھا ہوا تھا۔ حویلی کا فرنیچر اور متعدد ساز و سامان بڑے بڑے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حویلی کے مالکوں نے جب بھی اس حویلی کو چھوڑا ہوگا تو کیا انہیں علم تھا کہ وہ دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے یا ایک لمبے عرصے تک نہیں آئیں گے؟ تبھی انہوں نے گھر کے ساز و سامان کو اس طرح سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اور یہی نہیں، اندر زیرو کا بلب بھی جل رہا تھا۔ اگر یہ حویلی برسوں سے بند تھی تو زیرو کا بلب کیسے جل سکتا تھا؟ میرے ابا گھر کے لیے جو بلب لے کر آتے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال چلتا تھا، پھر فیوز ہو جاتا تھا اور ابا کو نیا بلب لانا پڑتا تھا۔ تو اس حویلی میں زیرو کا بلب کیسے جلتا رہا تھا؟ رات کا وقت تھا، مجھے مزید آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی اور میں وہیں زمین پر لیٹ گئی۔ کافی دیر میں خلاؤں میں گھومتی رہی اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، میں اٹھ بیٹھی۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ کئی دن بعد مجھے اتنے سکون کی نیند آئی تھی۔ میں نے حویلی پر نظر ڈالی اور سوچنے لگی، پتہ نہیں کون اس حویلی کو پراسرار حویلی کہتا ہے۔ اگر یہاں کوئی بھوت ہوتے تو میں رات اتنے سکون سے کیوں سوتی؟ مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں اٹھی اور باورچی خانہ تلاش کرنے لگی۔ ایک کمرہ کھولا تو وہ باورچی خانہ ہی تھا، جیسے شہروں میں ہوتا ہے۔ گاؤں کے وٹیرے نے بھی اپنی حویلی کا باورچی خانہ شہر کے باورچی خانوں کے طرز پر بنایا ہے، اس لیے مجھے اس کا علم تھا کہ میں نے نلکا کھولا تو اس میں پانی آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور جی بھر کر پانی پیا۔ ظاہر ہے باورچی خانے میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بسکٹ یاد آئے۔ میں باورچی خانے سے نکلی۔ جس جگہ دروازے کے پاس میں رات سوئی ہوئی تھی وہاں میرا شاپر پڑا تھا، جس میں میرے کپڑوں کا ایک جوڑا اور بسکٹ کے 2 ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے شاپر اٹھایا اور اس میں سے بسکٹ نکالنے لگی کہ اچانک میری نظر اس دروازے پر پڑی جس سے میں اندر آئی تھی۔ جس جگہ دروازہ تھا اب وہاں دروازہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے بسکٹ کا ڈبہ واپس شاپر کے اندر رکھا اور دائیں بائیں باہر جانے کا دروازہ ڈھونڈنے لگی، مگر کہیں بھی باہر جانے کا دروازہ نہیں تھا۔ ہر طرف دیوار ہی دیوار تھی، لیکن ایک شیشوں کی بڑی کھڑکی جس کے آگے بڑے بڑے پردے لٹک رہے تھے۔ میں نے وہ پردے ہٹائے۔ باہر صبح ہو چکی تھی، شاید صبح کے 8 یا 9 بجے ہوں گے۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں کس سے پکارتی، کس سے بلاتی؟ اچانک حویلی کے گیٹ کے سامنے سے 2 مرد گزرے۔ وہ پیدل تھے۔ میں انہیں ہاتھ ہلا ہلا کر پکارنے لگی، بات سنیں، بات سنیں، مگر وہ چلے گئے۔ اتنی بڑی حویلی تھی، میں حویلی کے اندر قید ہو چکی تھی۔ بھلا میری آواز باہر کیسے جاتی؟ ایک ہی صورت تھی کہ میں اس کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی اور ہر آنے جانے والے کو ہاتھ سے اشارہ کرتی۔
مجھ پر نظر پڑنے کی صورت میں کوئی میری طرف آ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد وہاں کوئی نہ آیا تو میں واپس نیچے بیٹھ گئی اور اس وقت میرے اوسان خطا ہو گئے جب مجھے حویلی میں بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کھڑی ہوئی اور آواز کی سمت چل پڑی۔ حویلی 3 منزلہ تھی، آوازیں دوسری منزل سے آ رہی تھیں، اندر سیڑھیاں بھی تھیں۔ میں دروازوں سے اوپر کی طرف چل پڑی، آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں دوسری منزل پر پہنچی تو میں نے راہداری میں 3 بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ ان کی عمریں کم و بیش یہی کوئی 8، 10 یا 12 سال کی ہوں گی۔ وہ ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگی کہ کہیں یہ وہی بچے تو نہیں ہیں جو غائب ہوئے ہیں۔ اگر یہ وہی بچے ہیں تو اتنی بے فکری سے یہاں کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیا انہیں گھر یاد نہیں آ رہا؟ اسی اثنا میں ایک عورت بچوں کے پاس آ پہنچی اور بولی، بچوں کھیلنا بند کرو، چلو آؤ کھانا کھا لو، شاباش جلدی آؤ۔ بچے سنتے ہوئے اس عورت کے پیچھے چل پڑے۔ راہداری کے عین سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ عورت بچوں سمیت اس گھر میں داخل ہو گئی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ دروازے کھولے بغیر بند دروازے سے اندر چلے گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یقیناً وہ انسان نہیں تھے۔ خوف کے مارے میری جان نکل گئی تھی۔ میں نیچے کی طرف بھاگی۔ میں واپس اسی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے پسینہ صاف کیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے وہ درست ہے۔ پورا دن میں کھڑکی کے پاس اسی جگہ بیٹھی رہی، مگر کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی۔ جب تھک جاتی تو وہیں فرش پر لیٹ جاتی۔ زیرو بلب کی روشنی میں دل تنگ ہوتا تو کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور باہر کی روشنی اور کھلا آسمان دیکھتی رہتی۔ کہیں دوپہر کے بعد ایک بڑی گاڑی حویلی کے باہر آ کر رکی۔ 4 افراد گاڑی سے نکلے اور حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ حویلی کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے اندر آئے۔ میری آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ میں زور زور سے ہاتھ ہلا کر انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے انہیں پکارا بھی، یہاں دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، مگر وہ حویلی کی طرف دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہوئے بھی مجھ سے بے خبر تھے۔ تھوڑی دیر وہ آپس میں باتیں کرتے رہے مگر حویلی کے اندر نہیں آئے اور چلے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ میں 2 دن اسی جگہ بیٹھی رہی، بسکٹ کھا کر اور پانی پی کر گزارا کر لیتی۔ اللہ کی مدد کا انتظار کر رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ حویلی سے باہر لان بنا ہوا تھا، آوازیں وہاں سے آ رہی تھیں۔ میں نے ہلکا سا پردہ ہٹایا۔ وہی 3 بچے آدھی رات کے وقت لان میں کھیل رہے تھے اور ان کی ماں ان کے قریب کھڑی انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس عورت نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں نے پردہ ٹھیک کیا اور دوبارہ کونے میں ہی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس حویلی میں ایک جن نہیں تھا، جنات رہتے تھے، مگر وہ بچے کہاں گئے جو اس حویلی میں آئے اور گم ہو گئے؟ رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر گئی۔ اگلی صبح میں نے بھی کمر کس لی کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر میں اسی طرح یہاں بیٹھی رہی تو میں تو بھوک سے مر جاؤں گی۔ میں نے ہمت کی اور حویلی میں گھومنے پھرنے لگی۔ کوئی تو راستہ ہوگا جو مجھے یہاں سے باہر لے جائے گا۔ 3 منزلہ حویلی میں کمرے ہی کمرے تھے۔ ایک بھول بھلائیاں جیسی حویلی تھی جہاں بندہ ویسے ہی گم ہو جائے۔ تیسری منزل پر میں ایک کمرے میں گئی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بہت بڑا ہال کمرہ تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ شیشے سے ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس کے اندر مختلف عمروں کے 5 بچے قید تھے۔ بچے مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی طرف بلانے لگے۔ میں ڈرتے ڈر کے ان کے قریب گئی۔ شیشے سے بنا کمرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ بچے مسلسل بول رہے تھے مگر ان کی آوازیں باہر نہیں آ رہی تھیں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مگر ان کے اشاروں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھے اس قید خانے سے باہر نکالنے کا کہہ رہے تھے۔ کمرے کے اندر بلب کی بجائے جگہ جگہ رکھی قندیلیں جل رہی تھیں۔ اسی دوران مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہی عورت جسے میں 3 دن سے یہاں دیکھ رہی تھی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ بچے اسے دیکھتے ہی سہم کر بیٹھ گئے۔ اس نے ایک قندیل اٹھائی اور دوبارہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سانس روکے دروازے کے پیچھے چھپی اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی میں بچوں کے پاس آئی۔ میں نے انہیں اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں یہاں سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گی۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے۔ میں کمرے سے باہر نکلی۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں حویلی میں وہ راستہ ڈھونڈنے لگی جس کے ذریعے ہم نے باہر نکلنا تھا۔ ایک پراسرار حویلی میں صرف کمرے اور راہداریاں تھیں۔ میں ایک کمرے میں گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے کے اندر چھت پر ایک بڑا سوراخ تھا جس سے دھوپ کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ کمرے کے درمیان گملے میں ایک کانٹے دار پودا لگا ہوا تھا۔ کافی بڑا پودا تھا۔
मैं उस पौधे के करीब आई। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं पौधे को हाथ लगाने ही वाली थी कि अचानक आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी जो यकीनन जिनज़ादी थी। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो चिल्लाई, खबरदार जो इस पौधे को हाथ लगाया, पीछे हट जाओ। मैं खौफज़दा नज़रों से उसे देखते हुए पीछे हटी और पौधे से टकराई। वो गुस्से से चिंघाड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ी। मैंने खौफ के मारे कांटेदार पौधे को पकड़ लिया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ती, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हर तरफ धुआं फैल गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मेरा जिस्म ज़मीन से चंद फुट ऊपर उठा और हवा में तैरने लगा। ये सब क्या हो रहा था? चंद लम्हे यही कैफियत रही। इसके बाद मेरे कदम ज़मीन पर आ लगे। धुआं छटने लगा। मैं धुआं छुटने का इंतज़ार कर रही थी। न जाने वो जिनज़ादी अब भी थी या जा चुकी थी। जैसे ही धुआं छटा, मैं ये देख कर दम बखुद रह गई कि मैं एक बाग में खड़ी थी। नहायत खूबसूरत बाग था। हर तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। कई फूल तो ऐसे थे जो मैंने आज से पहले नहीं देखे थे। यकीनन मैं हवेली से बाहर आ चुकी थी। वो कांटेदार पौधा क्या हवेली से बाहर आने का रास्ता था? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी, मगर ये कौन सी जगह थी? अभी मैं ये सब देख रही थी कि एक नौजवान लड़की आई और बोली, मेरे साथ चलो, तुम्हें मलिका बुला रही हैं। क्या? मलिका? मैं किस दुनिया में आ चुकी थी? मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई और खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। वो मुझे एक माहौल के अंदर ले गए। चलते चलते हम एक कमरे के सामने रुके। वो बोली, ये मलिका का कमरा ख़ास है, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मैं कमरे से बाहर खड़ी थी। चंद सातों के बाद वो वापस आई और बोली, मलिका बुला रही हैं, अंदर आ जाओ। मैं डरते डरते अंदर चली गई। उफ़ अल्लाह, इतना खूबसूरत कमरा! मैंने तो इतना खूबसूरत कमरा कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। खूबसूरत पलंग के साथ एक बहुत बड़ी खूबसूरत देवहेकल कुर्सी रखी हुई थी और एक निहायत खूबसूरत औरत उस पर बैठी शान व शौकत से वाकई मलिका लग रही थी। मुझे कमरे में लाने वाली अदब से हाथ बांधे सर झुकाए मलिका के सामने खड़ी हो गई। मलिका बोली, कहो। जिनज़ादी, उसने बताया। जिनज़ादी? ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। जिनज़ादी ने कहा, नहीं मलिका, मैं तो सीधा इसे आपके पास लेकर आई हूँ। मलिका ने हूँ कहा और बोली, ए इंसान ज़ादी, तू यहाँ क्या कर रही है? हमारी दुनिया में कैसे आई? मैंने कहा, मुझे इल्म नहीं। हवेली में थी और मैंने वहाँ एक कांटेदार पौधे को हाथ लगाया था, मगर इस हवाले से एक जिन्नी रहती है। वो हवेली में आने वाले हर इंसान को कैद कर लेती है। अभी भी उसने 5 बच्चों को कैद कर रखा है। इन बच्चों को बचा लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो इन बच्चों को मार दे। ये सुनकर मलिका कुर्सी से खड़ी हो गई और बोली, ये तू क्या कह रही है? इसके बाद मलिका ने चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद की और साकत खड़ी हो गई। उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली और बोली, जिनज़ादी, ये सब क्या हो रहा है? अरमीना जिनज़ादी बरसों से कहाँ गायब है? मुलाज़मा जिनज़ादी ने कहा, नहीं मालूम मलिका, बस इतना जानती हूँ कि एक बार वो इंसान की दुनिया में गई थी, इसके बाद वापस नहीं आई। मलिका ने ताली बजाई। एक देवहेकल जिन कमरे में ज़ाहिर हुआ। मलिका ने उसे हुक्म दिया, उस औरत के साथ जाओ और अरमीना जिनज़ादी और उसके बच्चों को यहाँ ले आओ। जिन ने कहा, जो आपका हुक्म। जिन ने मुझे उठाकर देखा। उसके बाद मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। चंद लम्हों बाद जैसे मुझे होश आ गया। मैंने खुद को हवेली के अंदर पाया, मगर ये क्या, मेरे आगे देवहेकल जिन खड़ा था, जबकि हमारे सामने वही जिनज़ादी अपने 3 बच्चों और कैद किए गए बच्चों के साथ खड़ी थी। जिन ने कहा, अरमीना, तुम्हें मलिका याद कर रही है। जिनज़ादी ने कहा, क्यों याद कर रही हैं? जिन बोला, मुझे नहीं मालूम, तुम अभी मेरे साथ चलो। जिनज़ादी गुस्से से बोली, यहाँ से चले जाओ वरना मैं इन बच्चों को मार दूंगी। जिन ने कहा, अरमीना जिनज़ादी, तुम मलिका की हुक्म अदूली कर रही हो और इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। जिनज़ादी गुस्से से गरजी, मेरी यही दुनिया है, मैं मलिका की पाबंद नहीं हूँ। ये सुनते ही जिन को गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथ हवा में बुलंद किए। उसी वक्त हवेली के अंदर तूफ़ान आ गया। खिड़कियाँ दरवाजे बंद थे, मगर न जाने तूफ़ान कहाँ से अंदर आ रहा था। जिनज़ादी ने देवहेकल जिन पर हमला कर दिया। यकीनन वो बहुत ताकतवर थी। जैसे उसने जिन पर हमला किया, तूफ़ान रुक गया। उधर 5 बच्चे दौड़कर मेरे पास आ गए। जिनज़ादी ने ये देखा तो वो फ़ौरन मेरी तरफ लपकी। बच्चे मेरे पीछे पीछे छुप गए, मगर इससे पहले कि वो मुझे नुकसान पहुंचाती, जिन ने जादू के ज़ोर पर उसे रोक दिया। वो साकत खड़ी थी और अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। मैं और बच्चे चंद कदम पीछे हटे। जिनज़ादी चिल्लाई, ये सब बेकार है। बरसों में मेरी ताकत इतनी बड़ी है कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा। जैसे ही उसने
आंखें खुली, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। हम सब उसे हैरत से देख रहे थे। वो भी भयानक आवाज़ में कहकहा लगाकर हंसने लगी और दोबारा मेरी तरफ बढ़ी कि उसी लम्हे मलिका ज़ाहिर हो गई। मलिका अपनी उसी शानदार तख्तनुमा कुर्सी पर बहुत शान से बैठी हुई थी। बोली, रुक जाओ अरमीना, जल्दी क्या है? मलिका की आवाज़ सुनते ही जिनज़ादी ने मुड़कर देखा, मगर मलिका ने अपना हाथ अरमीना जिन्नी की तरफ बढ़ाया और उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो दूर जा गिरी और दोबारा उठ ना सकी। मलिका ने कहा, तूने समझा था कि शायद हमें कभी कुछ पता ना चलेगा। ताकत के घमंड ने तेरी आंखों पर पट्टी बांध दी है। देवहिकल जिन ने अरमीना जिन्नी को काबू कर लिया। मलिका ने उसे हुक्म दिया कि उसे और उसके बच्चों को ले जाए, उसे कैद खाने में डाल दो और इसके बच्चों को हमारे आने तक सरदार याकूत के हवाले कर दो। जिन ने झुककर मलिका को सलाम किया और जिनज़ादी अरमीना और उसके बच्चों को लेकर गायब हो गया। मलिका मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम बहादुर लड़की हो और शायद किसी परेशानी में मुब्तला हो। इसके बाद मलिका ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और मुझे देते हुए बोली, ये अंगूठी पहन लो और घर लौट जाओ। ये अंगूठी तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में? मलिका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैंने मलिका का शुक्रिया अदा किया। वो गायब हो गई। मलिका के गायब होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, मगर अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मेरी नज़र दरवाजे वाली जगह पर पड़ी। अब वहाँ दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। ये देखकर बच्चे खुशी से चिल्लाए, बाजी वो देखें दरवाज़ा। इसी असना में हमें गाड़ियों की आवाज़ें आईं। मैंने भाग कर दरवाज़ा खोला। मैं बच्चों समेत हवेली से बाहर निकली। बाहर 4 गाड़ियाँ खड़ी थीं, 2 पुलिस की थीं और 2 गाड़ियों में आम लोग थे। बच्चे भागकर उनसे गले मिलने लगे। बच्चों ने उन्हें बताया कि इन बाजी ने हमारी जान बचाई है। वो लोग मेरे शुक्रगुजार होने लगे। उनमें एक शख्स ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे भी अपने साथ घर ले गया। यह एहतशाम के वालिद अमीन साहब थे। बहुत रुपए पैसे और असर रसूख वाले शख्स थे। उन्होंने मेरी बहुत खातिर मदारत की और मेरे मुतालिक पूछा। मैंने शर्माते घबराते उन्हें खुलकर सारी हकीकत बता दी। अमीन साहब कहने लगे, तुम फिक्र ना करो बेटी, मैं ख़ुद तुम्हें गांव लेकर जाऊंगा और अगर शहर के एसपी से बात करना पड़ी तो उनसे भी बात कर लूँगा। ये सरासर ज़्यादती है। अमीन साहब की बीवी और 2 जवान बेटियां भी थीं। सब घर वाले बहुत अच्छे थे। मैं एक दिन उनकी तरफ रही। इस दौरान अमीन साहब ने अपने ताल्लुकात के बड़े बड़े लोगों से रब्ता किया और मेरे मसले पर बात की। अगले दिन अमीन साहब ने कहा, मेहरुनिसा बेटी, तुम तैयार रहना, हम 1 बजे तुम्हारे गांव की तरफ निकलेंगे। मेरे साथ शहर के एसपी कमिश्नर साहब भी होंगे। उन्होंने अपनी बेगम को भी तैयार होने के लिए कहा कि अकेली लड़की को लेकर जाना ठीक नहीं, न जाने वो लोग क्या अंदाज़े लगाने बैठ जाएं, इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ। अमीन साहब की बेगम भी तैयार हो गई। हम लोग दोपहर का खाना खाकर निकले। एसपी और कमिश्नर के अलावा शहर का एसएचओ भी साथ था। बहरहाल तकरीबन 2 घंटे बाद हम गांव में दाखिल हुए। अमीन साहब ने मुझे और अपनी बेगम को मेरे घर ड्रॉप किया और गांव के वडेरे की हवेली पर एक बार फिर पंचायत लग गई। मेरे अब्बा, भाई, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और चौधरी को भी वहीं बुला लिया गया। अमीन साहब ने वडेरे से सिर्फ एक ही सवाल किया, एक कत्ल हुआ है, इस कत्ल की तफ्तीश नहीं की गई। इस कत्ल की तफ्तीश कराए बगैर, मुलजिम पर जुर्म साबित किए बगैर आपने फैसला कैसे सुनाया, और वो भी ये कि इस बेकसूर लड़की की कुर्बानी दे दी जाए जिसका कसूर ही कोई नहीं। आखिर ये फैसला आपने किया कैसे? अमीन साहब के एक ही सवाल ने वडेरे को बोलने का मौका नहीं दिया। गांव के थाने का थानेदार भी आ गया। कमिश्नर ने खुद उसे हुक्म दिया कि इस कत्ल की तफ्तीश करो, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मुझे जमा करवाओ। पंचायत में सबके पसीने निकले हुए थे। किसी की बात करने की हिम्मत ना हुई, ख़ास तौर पर चौधरी के बेटे। 2 दोस्त, जिनमें से एक ने चौधरी के बेटे को नहर में धक्का दिया था और दूसरे ने झूठी गवाही दी थी। अमीन साहब की मेहरबानी से मेरी जान और ज़िंदगी दोनों बच गए। उनकी बेगम हमारे लिए बहुत सारे तोहफे भी लाई थीं। उन्होंने हमें तोहफे दिए और अमीन साहब ने जाते जाते अब्बा से एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। बहनें भाइयों की गलतियों का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं होती। अब्बा और अम्मा ने उनका शुक्रिया अदा किया और चले गए। इस केस की तफ्तीश इसी दिन शुरू हो गई। उधर तफ्तीश शुरू हुई, उधर अगले ही दिन खबर मिली कि चौधरियों के बेटे के दोनों दोस्त गाँव से फरार हो गए हैं। ये खबर मिलते ही सबको यकीन हो गया कि भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। खैर, पुलिस अब उनके पीछे थी क्योंकि कमिश्नर साहब खुद इस मामले की निगरानी कर रहे थे। कमिश्नर साहब अमीन साहब के रिश्तेदार थे। आखिर थोड़ी सी तकदो के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने अपना जुर्म भी तस्लीम कर लिया। जब वडेरे को इसका इल्म हुआ तो उसने चौधरियों को अपनी हवेली पर बुला लिया और उसे लेकर हमारे घर अब्बा से मौजरत करने आ गया। अब्बा ने उन्हें मुआफ़ तो कर दिया, मगर मैंने अब्बा से ये सवाल किया, अब्बा मेरी किस्मत तो अच्छी थी, मगर कितनी मासूम लड़कियाँ इस तरह के गलत फैसलों की भेंट चढ़ जाती हैं। मैं ये सवाल आप लोगों के लिए भी छोड़ती हूँ। क्या
किसी के पास इसका कोई आदाद व शुमार है? अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।